ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی تمام حدیں پار کر لیں، نسل کشی کو کب تک نظر انداز کیا جائے گا؟ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ریاض میں عرب اسلامی کانفرنس سے خطاب کے دوران ایران اور لبنان پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم بولے، خطے میں بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے، جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا، فوری غیر مشروط جنگ بندی کرنا ہوگی۔ Pakistan stands firm in its commitment to Palestine. I ask, how long will this annihilation be ignored? Pakistan strongly condemns Israel's recent strikes on Iran, military aggression against Lebanon. Such escalations constitute a dangerous threat that could unleash a broader war. This conference must call for immediate and unconditional ceasefire, accountability for Israel's war crimes, a comprehensive review of Israel's membership in the United Nations. Let this summit be a moment to transform our voices into actions. We must move beyond condemnation and act swiftly. مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطینیوں کی نسل کشی، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ کے تقدس کی پامالی کی بھی مذمت کی۔ کہا، اسرائیل نے لبنان کی خود مختاری خطرے میں ڈال دی۔ سعودی عرب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا، اسرائیل فلسطین کا وجود مٹانے پر تلا ہوا ہے، تمام مسلمان ملکوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ معالي الأمين العام لجامعة توافقنا في قضيتنا المشتركة ونتحدث الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة لقد اتخذت دولنا خطوات مهمة عبر تحركها المشترك على الصعيد الدولي لإدارة العدوان الإسرائيلي الآثم وتأكيد دوسری عالمی جنگ کا بارودی مواد کراچی ایئرپورٹ دھماکے میں استعمال ہوا، گاڑی میں بارود بلوچستان میں نصب کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا انکشاف۔ ضیاء الانجار نے بتایا، حملے میں ایک خاتون نے بھی سہولت کاری کی۔ دھماکے کے بعد ملنے والے بازو سے خودکش حملہ آور کی شناخت فہد کے نام سے ہوئی۔ گلنسا، جاوید، شریف اور فرحان نامی ملزم گرفتار ہیں، دانش نامی سہولت کار کے تعاقب میں ہیں۔ پر ایئرپورٹ کی حد میں حملہ ہوا تھا، خودکش بمبا ایک ہاتھ تھا، فنگر پرنٹس لیے تو پتہ چلا کہ یہ فہد ہی ہے۔ فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ گاڑی کی خرید میں تھے، وہ یہ لوگ شامل تھے۔ ایک شو روم سے لی گئی ہے کراچی میں 71 لیکس، جس کے اکاؤنٹ سے ٹیرر فائنانسنگ ہوئی، کا نام سعید علی تھا، بینک امپلائی فیسیلیٹیٹر تھا بلال تھا۔ اس کے بعد پھر یہ گاڑی ہپ گئی ہے، مواد ہے وہ اس میں فٹ کیا گیا ہے جس کو ہم پینٹ کہتے ہیں۔ انیشلی جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ یوز ہوا تھا۔ تقریباً 30 to 40 kg اس کا وزن تھا۔ 4/10/2024 پر 4 بجے کے قریب ہب سے یہ کراچی کی طرف آئے ہیں۔ یہ ایک خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے، گلنسا ہے۔ جو مین ہینڈلر ہے جاوید، اس جاوید نے ہی ساری ریکی کی ہے ایئرپورٹ کی۔ میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک گارڈن ہے، وہاں سے انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر، وہ بم ہے وہ بلاسٹ ہونے میں جب جو لاسٹ ٹائم ہو تو وہ کنیکشنز وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ دانش نام ہے اس کا، الرحمان ہے، سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے PLA کے لیے کام کر رہا ہے۔ بشیر زیب ہی از اے ہیڈ، وہ کسی فارن کنٹری میں آپریٹ کر رہا ہے۔ گلنسا رکشا والا ہے، یہ بھی اریسٹ ہے۔ محمد جاوید جو ہے ایلیاس سمیر، یہ بھی اریسٹ۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ بلوچستان کے علاقے وندر سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مختلف علاقوں سے 2 خودکش حملہ آوروں سمیت 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 مبینہ خودکش حملہ آور کراچی میں سیکیورٹی فورسز اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ پاک چین تعلقات خراب کرنے والے سزا سے نہیں بچ سکیں گے، چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ۔ ترجمان نے کہا، چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرنے والے دہشت گرد سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔
दहशत गर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। इसका मुकाबला करना और सानहात को दोबारा रोनुमा होने से रोकना बैनुल अक़वामी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। यहाँ वक्त हुआ। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है। मौलाना फजल रहमान की बरतानिया में गुफ्तगू। JUI सरबराह का कहना है बानी PTI से डील का इल्म नहीं। बानी PTI की फ़िलहाल रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की ज़मानत में मेरा कोई किरदार नहीं। 26वीं तरमीम से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ ज़रूर मिला है। कब तक बाहर आ जाएंगे? इस वक्त तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लख्त भी बदल सकते हैं। बुशरा बीबी जब उनकी ज़मानत हुई, खान साहब की जो बहनें थी उनकी ज़मानत हुई, तो ये बात सामने आई कि इस हवाले से आपने भी कोई किरदार अदा किया और PTI को रिलीफ मिला है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये मामला न मेरे से मुताल्लिक़ है और मैं खामखा जिससे मेरा कोई सरोकार न हो उसमें मुदाखलत करता रहूँ। इस दौरे के दौरान आपकी मियां साहब से कोई मुलाकात मतवक्की है? मैं निजी सफ़र पे हूँ, अगर होती है कोई मज़ायक़ा भी नहीं। पानी पी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। उन्होंने आगे भी 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। PTI जब भी बात करेगी हमारे साथ करना होगी। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे? खान साहब को आप रिहा नहीं देख रहे? फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको सजा हो। वो जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड वाला, वो 2 + 2 4 है। खान साहब अपने खुद दुश्मन है, उनका बुरा उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह जो इस वक्त है ना पिछले 2 साल में और आगे उनका टेन्योर अभी 3 साल और है, वो बंदा आंख ऊँख नहीं मारे। सीधी बात अगर उन्हें करनी हुई तो इनको हमारे साथ ही करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, सियासी क़यादत के साथ करनी पड़ेगी। जब भी ये करें गंडापुर साहब इस्तीफा खुद ही ठीक हो या उन्हें ठीक कर दिया जाए ना। जनाजा पढ़ाने पे आ गए हैं तो लाइन क्रॉस करेंगे, फिर मेरा ख्याल है कि शायद फिर उनकी कोई दुरुस्ती का अमल हो। वो दोनों तरफ खेलता है। मियां साहब ने आपकी कुछ माह पहले ड्यूटी लगाई थी, यही मुज़ाकरात सियासी आप बड़ी खामोशी से करते रहे, वो क्या चल रहे हैं? वो चलते रहे। PTI के लोगों के साथ भी हमारा इज्जत एहतराम का, और उनसे अभी आपकी कुछ मुलाकातें हुई हैं? बस ये बात बताने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि वो आपके पॉइंट पे आ रहे हैं? आना पड़ेगा। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर ही हो। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आइनी बेंचों का तस्करा छिड़ गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आइनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस वक्त कोई आइनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आइनी हैं? अब ये सवाल सामने आया है केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच? अगर हम केस का फ़ैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें हम खुद फ़ैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि क्या आइनी बेंच सुनेगा या रेगुलर, और इसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर गुजरात से है जहां कमर से अलवी रोड पर डाकुओं ने फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया। 2 नकाबपोश डाकू खातून से सोने की चूड़ियां छीनकर फरार हो गए हैं। आमिर भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। आमिर बताइए क्या तफसील है इस वाक़े की? ये बिल्कुल ये कमर से अलवी रोड की बड़ी मसरूफ तरीन शारा है, उसके साथ ही मोहल्ला है अला लोग कॉलोनी। वहाँ पर 2 मियाँ बीबी जो ही अपने घर के सामने पहुंचे, अभी उतरे ही हैं तो 2 डाकू जो CCTV फुटेज में देखे जा सकते हैं कि उन्होंने उतरा है और गन पॉइंट पर उन्होंने खातून की जबरदस्ती चूड़ियां उतारी हैं और वहां से वो गन दिखाते हुए वहां से फरार हो गया। और ये CCTV फुटेज के मंजर आपके आने के बाद इस बात की वजाहत हो गई है कि अब मुझे डाकू जो है ना वो बेकाबू थे। इसके अलावा भी गुजरात में 6 से 8 डाकुओं का एक और गिरोह है जिसने गुजरात पुलिस का नाक में दम करके रखा हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर वो डकैतियां कर रहे हैं। एक देवना मंडी के अंदर उन्होंने एक औरत को कत्ल किया है, कादर कॉलोनी में उन्होंने डकैती की है, वहां पर उन्होंने वारदातें की हैं और किसी जगह से भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका आमिर भट्ट।
पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक एक्शन प्लान पहले रोज ही नाकाम। 8 बजे के बाद भी बरकत मार्केट में फास्ट फूड की दुकानें खुली हैं। हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई भी टीम मौके पर मौजूद नहीं। मजीद जानते हैं यार मोहम्मद से। इस वक्त मैं लाहौर की अहम मार्केट बरकत मार्केट में मौजूद हूँ, जो फास्ट फूड और खाने पीने के लिहाज से खासी मशहूर मार्केट है। यहाँ पे 8 बजे के बाद भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, वो खुली दिखाई दे रही हैं। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त है, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है ये खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। यहाँ पे तवों से धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है, जो स्मोक का सबब बनता है। बरकत मार्केट के अंदर और इतराफ़ में शदीद स्मोक है, और ये जो इम्प्लीमेंट है, ये 500 जो शरह है एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेट है, उससे तजावुज़ करने के बाद हुकूमत ने ये पाबंदी का इतलाक लगाया है। पहले ही रोज़ मुकम्मल तौर पे जो हुकूमत है वो नाकाम दिखाई दे रही है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। यहाँ पे कोई हमें हुकूमती टीम दिखाई नहीं दे रही। ये सिचुएशन है लाहौर की दीगर मार्केट्स भी हमने विज़िट किए हैं, वहाँ पे भी ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख चुके हैं। अलबत्ता आज ही ये फैसला हुआ था कि रात 8 बजे के बाद बाज़ार बंद होंगे, आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी, लेकिन इस सब के बावजूद लाहौर शहर में सब कुछ मामूल के मुताबिक खुला नज़र आ रहा है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की GHQ में मुलाकात। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ ने अमन के मुश्तरका अहदाफ के लिए 2 तरफा मजबूत ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। दिफा और सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत ताल्लुकात अमन के मुश्तरका अहदाफ के लिए मददगार साबित होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फैयाज रुवैली तेहरान पहुँच गए। ईरानी हम मनसब मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की। जनरल बाकरी ने सऊदी फ़ौजी सरबराह का खैर मकदम किया और दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन में इजाफे के इम्कानात पर जोर दिया। बाकरी ने कहा, चाहते हैं आइंदा साल ईरानी बहरी मशक़ों में सऊदी फ़ौजी खुसूसी शिरकत करें। सऊदी आर्मी चीफ जनरल फैयाज बिन हामिद अल रुवैली ने कहा, दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। बीजिंग मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में इजाफे के लिए अच्छी बुनियाद है। जनरल बाकरी ने सऊदी वज़ीर दिफ़ा को ईरान के दौरे की दावत भी दी। क्या भारत अब भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ सकता है? क्या एक टेलीफोन कॉल जादू कर सकती है? इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हाशमी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न आने पर भारत के मौक़िफ़ ने क्रिकेट को फिर सियासत की भेंट चढ़ा दिया है, लेकिन सियासत ही वो वाहिद रास्ता है जो पाक भारत क्रिकेट बहाल कर सकती है। क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक टेलीफोन कॉल भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने का रास्ता खोल सकती है? नामवर भारतीय क्रिकेट सहाफ़ी LP के साही मानते हैं ये आखिरी और बेहतरीन ऑप्शन होगा। ऐसा पहले भी हुआ है। 1987 में सदर ज़ियाउल हक की क्रिकेट डिप्लोमेसी पाक भारत तारीख का हिस्सा है। 2004 में तमाम तर खदशात के बावजूद उस वक्त के भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय कप्तान सौरव गंगुली को कहा, पाकिस्तान जाएं, मैच ही नहीं दिल भी जीतें। पाकिस्तानी शायकीन ने भारतीय खिलाड़ियों और आने वाले फैंस के दिल जीते। 2005 में पाकिस्तान की टीम जब भारत गई तो वहां पाकिस्तानी फैंस के लिए घर रहने को दिए गए। नरेंद्र मोदी बर्फ पिघलाने 2015 में पाकिस्तान आ चुके हैं। क्रिकेट मोदी साहब को भी पसंद है। नवाज शरीफ खुद खेल चुके हैं। क्रिकेट पिच से अमन का रास्ता पहले भी खुला है, फिर खुल सकता है। सिर्फ सरहद के दोनों जानिब ही नहीं, दुनिया भर में लाखों शायकीन को इस्लामाबाद से दिल्ली फोन कॉल का इंतजार है। शाहिद हाशमी, ARY न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।